मैं स्वयं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र में बहुत साल पहले हमें ऐसा लगता था कि इंडिया की सबसे इंडस्ट्रियल स्टेट महाराष्ट्र है, पर आज जो यूपी में हमें देखना मिल रहा है कि आपने जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतने एक्सप्रेसवे बनाए हैं, करीबन आपकी 2025 तक 2,900 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे की रचना है। उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल आया है, बहुत पॉजिटिव बदल आया है। और जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर जो आपने बनाया है, उसमें जो आपकी सरकार उसमें काफी लक्ष्य दे रही है और जो नीति आज रक्षा मंत्री जी ने रविवार के दिन सुनाई है, जो बताई है, उसके कारण हमें लगता है कि वहाँ काफी जोर से काफी जास्ती मात्रा में इन्वेस्टमेंट आएंगे। और हमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से और आपसे मुख्यमंत्री जी एक ही कहना है कि हम आपके और श्री राजनाथ सिंह के साथ हैं कि ये देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। और आत्मनिर्भरता की ये पहली पहचान होगी कि ये संडे की जो डिसीजन आई है, जो पॉलिसी चेंज आई है, उसके कारण से काफी नई इन्वेस्टमेंट आने वाली है और उसकी बड़ी क्षमता यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में जाएगी। इंडियन नेवी के बारे में मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। इंडियन नेवी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो काफी सालों से इंडस्ट्री को हाथ में हाथ लेकर उनकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ उनका सहयोग ले रही है, उनको सहयोग दे रही है। और ये जो नया आज जो वर्चुअल लॉन्च है, इंडियन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक उसी दिशा में एक नया इंस्टीट्यूशन, ये नया ऑर्गेनाइजेशन जो निर्माण हो रहा है, उसको इंडिजिनाइजेशन में ज्यादा उसका फल लगेगा। मैं इंडस्ट्री की तरफ से, SID की तरफ से मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय रक्षा मंत्री जी आपको, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आपको, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जनरल करमवीर सिंह, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ श्री अशोक कुमार, and all my industry colleagues, thank you very much for this conference. नमस्कार। अपने नौसेना सेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार से निवेदन करूंगा कि वे हमें संबोधित करें। Honorable Raksha Mantri ji, Honorable Uttar Pradesh Chief Minister ji, Chief of Defence Staff, Chief of Naval Staff, and all guests who are assembled here and through the web. Today, we are assembled for the formal launch of the Naval Innovation and Indigenization Organization, or what we call the NII. I must at the outset thank SIDM for having organized more than 500 people from private industry, MSMEs and startups for this web launch. As you all are aware, and as Mr. Baba Kalyani rightly pointed out, the Indian Navy for decades has spearheaded indigenization in a big way. Setting up of our own design directorate in the 60s to design all our ships, institute of DESI in 1978 for weapon sensor integration and design combat management systems, and our own indigenization directorate in 2005. All these have resulted in giant strides by the Indian Navy in the field of indigenization. Over 130 ships of all sizes and types have been designed in-house by the Indian Naval Design Directorate. This includes the aircraft carrier that is currently being built at Kochi to the smallest fast attack crafts. Every type of ship and submarine is now built in Indian yards, including nuclear submarines. In the last 5 years, over 70% of our capital budget has been spent on Indian vendors. While we can be proud of our indigenization efforts, we are now looking at indigenous innovation and indigenous
production of cutting-edge technology. As you're all aware that the future wars will be decided by technology dominance. It is with the sole aim of accelerating indigenous innovation through Indian academia and industry that the NIIO is being launched today. The methodology of functioning of the NIIO that is being adopted are numerous. Let me just give you a few steps. A Naval Technology Acceleration Committee comprising selected naval officers as well as representatives from academia and SIEM will meet every 6 months to draw a roadmap and take stock of the progress. MOUs with academia such as IITs, RSU, which is present here today, Maker Village, as well as industry partners SIEM and UPEA, EIPA, to encourage innovation and participation by the domestic industry. The Technology Development Acceleration Cell, which is being set up by the Navy as a part of the NIIO, will coordinate with them regularly. We are also in the final stages of setting up chairs of excellence through excellent coordination by the UP government in a number of reputed academic institutions. A discussion for being launched today with the help of RSU will help address every query that the industry may have for the Navy. Our specific requirements are included in the book Swalabhan, which is being released today both by the Honorable Raksha Mantri and the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. We will ensure that this book remains updated and easily accessible to all online. This, I must tell you, is a combination of the Indian Naval Indigenization Plan, the Naval Aviation Indigenization Roadmap, as well as the recently produced Indian Naval Armament Indigenization Plan. In addition, we will also host an annual Innovation and Indigenization Seminar by Indian Navy in partnership with SIEM. This will help us partner with the domestic industry so as to enable them understand naval requirements better. With all this, we are confident that this step of inauguration of the NIIO today will go a long way in accelerating innovation and consolidating indigenization in the Navy, in keeping with the Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. Thank you all and Jai Hind. Thank you, sir. अब मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे संबोधित करें। माननीय रक्षा मंत्री जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल श्री करमबीर सिंह जी, वाइस एडमिरल अशोक कुमार जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश शासन के हमारे सभी अधिकारीगण, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि डिफेंस एक्सपो के बाद उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से आज का जो प्रस्तावित एमओयू है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इसके लिए हमें अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ भी हो रहा है। साथ साथ भारतीय नौसेना हमारे जो उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का जो नोडल विभाग है यूपीडा, उनके बीच में एक एमओयू भी हस्ताक्षरित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण की तरफ लगातार हम सबका ध्यान आकर्षित किया है
और इस दृष्टि से भी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी ने रक्षा से संबंधित जिन 101 आइटम्स को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया की तर्ज पर निर्मित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपितु इस देश के अंदर, भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसमें खासतौर पर जो 101 वस्तुओं की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अनेक हथियार प्रणालियों सहित देश की रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने वाली जो विभिन्न वस्तुएं भी शामिल हैं, इस निर्णय से स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद तो मिलेगी ही, देश का रक्षा उद्योग भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकेगा। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। एक शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के साथ साथ एक बेहतर समन्वय भी इसके माध्यम से स्थापित हो पाएगा। भारतीय नौसेना तथा यूपीडा के बीच आज एमओयू हस्ताक्षरित होने के साथ ही दोनों के मध्य औपचारिक रूप से एक संपर्क भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। एमओयू हस्ताक्षरित होने से भारतीय नौसेना प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में के सहयोग से अपनी समस्याओं को तकनीकी समाधान भी तलाश कर सकेगी। इस एमओयू के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में अपनी इकाई स्थापित करने की भी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। भारतीय नौसेना का डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित इकाइयों से प्रारूपता नेवल एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए भी इंटरैक्शन संभावित हैं। भारतीय रक्षा उद्योग में त्वरित गति से बदलाव आज की आवश्यकता है। देश सिर्फ रक्षा बाजार के विस्तार पर ही केंद्रित नहीं बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन मेक इन इंडिया की नीति के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन पर भी हमें ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश इस देश से अत्यंत संभावना वाला प्रदेश है और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश का स्वयं भी नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, इससे पहले केंद्र में कई विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में और आज रक्षा मंत्री के रूप में भी उनका जो यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, इस दृष्टि से इन संभावनाओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया था और उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा घोषित 2 डिफेंस कॉरिडोर में से उत्तर प्रदेश का एक है। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के विकास को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में उत्पादन की प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और छूट को भी हम लोगों ने यहां पर अपनी एक पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाया है। सिंगल विंडो प्रक्रिया के अंतर्गत हमने रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन इकाइयों को भी इसमें समाहित किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट जनपदों में 1290 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण हम लोगों ने इस देश से किया है। अलीगढ़ रक्षा कॉरिडोर का जो नोड है, इसमें निवेशकों ने
जितनी भी भूमि हमारे पास मौजूद थी उन सबको पहले ही वे लोग उनको आवंटित भी किया जा चुका है। यूपीडा ने आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन पहली बार आयोजित हुआ और माननीय रक्षा मंत्री जी का जो मार्गदर्शन था उसके अनुरूप हम लोगों ने इस एक्सपो को सफलतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। डिफेंस एक्सपो 2020 ये अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एग्जीबिशन का 11वां संस्करण और मुझे लगता है कि अब तक का जो सबसे बड़ा संस्करण भी था। हमारे लिए डिफेंस एक्सपो 2020 बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, हम लोगों को उस समय लगता था कि वास्तव में जो 6 नोड उत्तर प्रदेश के लिए घोषित हुए हैं इनमें से क्या निवेश आएगा नहीं आएगा। यद्यपि हमने उसके लिए पॉलिसी भी तैयार की, हमने उसके लिए लैंड बैंक बनाया, इसके लिए सारी औपचारिकताओं को भी आगे करने का प्रयास किया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी को, जिनके सहयोग और जिनके मार्गदर्शन में डिफेंस एक्सपो सफलतापूर्वक न केवल संपन्न हुआ बल्कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में 23 निवेशक कंपनियों के साथ हमारे हस्ताक्षर भी हुए और इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी उत्तर प्रदेश में इसके साथ ही होने की संभावना भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इससे न केवल औद्योगिक निवेश और विकास को आगे बढ़ाने और रोजगार के सृजन को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ है। आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के बावजूद यहां पर यूपीडा और नौसेना के बीच में जो एमओयू होने जा रहा है, ये हमारे लिए इसी प्रकार से और भी उपयोगी सिद्ध होगा। मैं एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी का और सभी संबंधित पक्षों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। आज भारतीय नौसेना 4 एमओयूज पर हस्ताक्षर करने जा रही है। नौसेना की ओर से सह नौसेना अध्यक्ष इन्हें हस्ताक्षर करेंगे। सबसे पहले मैं श्री अवनीश कुमार अवस्थी, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से निवेदन करूंगा कि इस एमओयू पर हस्ताक्षर करें। बैठ के कर लीजिए अभी। धन्यवाद सर। माननीय रक्षा मंत्री जी का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का और नेवी के हमारे सभी सहयोगियों का धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से धन्यवाद। डॉक्टर विमल पटेल, डायरेक्टर जनरल रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, गुजरात से निवेदन करूंगा कि वे एमओयू में हस्ताक्षर करें। डॉक्टर विमल पटेल। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत